So, namaste, sastyakal, vanakkam, and very good morning to one and all, and very warm welcome to our channel, that is A Square Classes. Today we are moving on towards the very next session of genetics, that is principle of inheritance, of the chapter name of principle of inheritance and variation, and we are up to today intergenic interactions. In intergenic interactions, previous class I have taught you what is complementary gene. This class we are going to see today, now this session, about supplementary gene. So give the very first heading for today's session is supplementary gene. Let's see what these supplementary genes are defined as. First of all, supplementary genes are two non-allelic genes. Beta ji, as usual, we are reading what intergenic interaction. So this is what non-allelic gene. Accepted? आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. The supplementary genes are two non-allelic. Dominant gene will produce its effects whether the other is present or not. वो जो जीन डोमिनेंट है, सप्लीमेंट्री जीन, वो प्रेजेंट है, उसका एडजेसेंट वाला जीन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. अगर वो प्रेजेंट है तो वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा. बट व्हाट अबाउट द अदर जीन? द सेकेंड डोमिनेंट जीन प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट only in the presence of first gene, usually forming a nutrient. मेरा सपोज मैं बोल लेती हूँ, अगर कोट कलर इन माइस या फिर ग्रेन कलर इन grains color in maize, suppose grain color in maize is responsible for two gene R and P. मान लिया आप लोगों ने, ठीक है, एक्सेप्टेड. क्या कहता है पहला लाइन? ये नॉन एलिलिक है, मान गए, हाँ ठीक है, दो एलील्स के बीच, नॉन एलिलिक दो जीन्स के बीच की बात हो रही है, इंटरजेनिक है, ठीक है. आर एंड पी अगर ये एक कैरेक्टर है, अगर आर जो है वो जो अपना कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस करेगा, चाहे P हो या ना हो, but P will express his character only when there is presence of R. Supplementary genes are two non-allelic genes. Dominant gene will dominant ले ले RRPP, चलो ले लिया, will produce its effect whether the other is present or not. मैंने आपको कहा R will express in any condition, चाहे दूसरा वाला है या नहीं है, but the second dominant gene PP, haven't I, will produce its effect only when the first one is in dominant condition. Presence of the first gene usually forming a new trait. Effect only in the presence of the first gene. अगर पहला वाला जीन डोमिनेंट में है तो ही दूसरा वाला अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा. Such type of expression is called as supplementary gene. आप लोग आंसर शीट लिखते हो, लिखने के बाद आपका पेपर खत्म हो गया. What do you add? You add supplement. सप्लीमेंट ऐड करने के बाद ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे ना. सो दिस इज व्हाट, व्हेन दिस जीन इज प्रेजेंट, इसका सप्लीमेंट्री जब प्रेजेंट है तो ही अपना कैरेक्टर दिखाएगा. जब आपने सप्लीमेंट डाला तो ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे. दिस इज व्हाट द स्टोरी इज. समझ में आया बेटा? एंड इसका वेरी गुड एग्जांपल है कोट कलर इन माइस, लाबलाब प्लांट, एंड अनदर वन इज ग्रेन्स कलर इन मेज. ग्रेन कलर इन ग्रेन्स, मेज के जो दाने होंगे ना उसके कलर की बात कर रहे हैं. तो आइए पहले इसका क्रॉस करवाते हैं, कोट कलर इन माइस का, एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो. मैम क्यों बार बार जीनोटाइपिक बोल रहे हो? जीनोटाइपिक तो हमेशा बेटा जी सेम ही होता है. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. चेंज क्या हो रहा है? phenotypic. So let's make a cross for coat color in mice and let's see what are the real examples, what are the real conditions of supplementary gene. So करवा ले cross? आप लोग कहोगे yes ma'am. चलो. So the next example which we are going to see is what? Coat color in mice. Agouti mice. The agouti color of mice was crossed with albino, totally white color of mice. जिसका अगाउटी के जो कैरेक्टर है जीनोटिपिक है वो कुछ इस तरह से है एंड एल्बिनो की कुछ इस तरह से. क्लियर? इसके गैमेट्स बनेंगे. F1 जनरेशन क्या मिली? ये मिली. सो दिस इज व्हाट आवर F1 जनरेशन. इतना तक समझ में आया बेटा जी? समझना. बट यहाँ से स्टोरी अलग हो जाती है. कोड कलर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सप्लीमेंट्री जीन. अब देखना जो कलर मिला F1 जनरेशन का फिनोटाइप वो भी अगाउटी था. इसके गैमेट्स बना ले. आप लोग कहोगे यस मैम. सो दिस आर आवर 4 different types of gametes. Let's make a cross for F2 generation. करवा ले क्रॉस. पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लिया. अब देखना ये क्या हो जाएगा बेटा जी? जल्दी जल्दी आप लोग क्रॉस करवाओ और मुझे फटाक से फिनोटाइपिक रेशियो कमेंट करो.
करो करो, हरी अप। बताओ क्या है इसके फिनोटाइपिक रेशो? कॉम्प्लीमेंट्री जीन के याद है फिनोटाइपिक रेशो? जिसको याद है फटाफट कमेंट करो एग्जांपल के साथ। मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में। आई वांट टू नो इन द लाइव सेशन व्हाट इज द रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन, फिनोटाइपिक रेशो। अब मैं आपको इसका फिनोटाइपिक रेशो बता देती हूँ बेटा सप्लीमेंट्री जीन का। क्या होना चाहिए? ये अगाउटी, अगाउटी दोनों कैपिटल है। कैन यू सी when these two things, when these two genes were capital, but this made the formation of what? Agouti color. So can you see that? तो ये दोनों मिलके अगाउटी दे रहे थे ना? हाँ। पर फिर मैम इसका और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस क्या है? अरे बेटा जी आएगा ना डिफरेंस। ये क्या होगा? गैस करो ये क्या होगा, फटाक से बताओ मुझे। को अगाउटी मिल गई क्योंकि हमने देखा था अगाउटी as per our F1 generation, अगर दोनों कैपिटल थे हेटेरोजाइगसली तो फिर हमको क्या मिल रहा था बेटा जी? अगाउटी। तो 9 मिल गए अगाउटी वाले। मान लिया ये चीज, ठीक है। फिर कुछ और कलर आएंगे क्या? क्यों आएंगे बेटा जी? ये देखो सप्लीमेंट्री जीन का डेफिनेशन याद करना। पहला जीन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, पहला जीन अगर दूसरा वाला है या नहीं है वो अपना कलर दिखाएगा। अगाउटी थोड़ा ग्रेश टाइप में कलर होता है बेटा, ठीक है। सो पहला जीन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वाला जीन, पहला वाला जीन अपना कैरेक्टर दिखाएगा। तो पहला वाला जीन इसमें डोमिनेंट है क्या? नहीं है डोमिनेंट, ठीक है। सो फिर किसमें डोमिनेंट है? इसमें, इसमें अगेन इसमें। समझ में आया? तो ये जो 3 है वो कैसे होंगे? एनी गेसेस? फटाक से बताओ मुझे। ये जो 3 है बेटा जी वो कैसे होंगे? ये जो 3 है बेटा जी वो ब्लैक होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सप्लीमेंट्री में बताया था कि अब पहला वाला जीन दूसरे के प्रेजेंस में अगर दोनों साथ है तो अगाउटी, अगर अकेला है तो वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाजू वाला है या नहीं है। फिर से एग्जांपल से समझाओ। 2 बच्चे पढ़ रहे थे मेरे आगे, 2 बच्चे यहाँ थे, 2 बच्चे वहां थे। एक शांति से पढ़ा, अपना आया निकल गया। बट एक ने क्या किया? उसने अलग से पढ़ाई की, वो ज्यादा पढ़कर आया। पिछला क्लास वाला एग्जाम्पल याद करो, इस क्लास में एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम आए मेरे पास, तुमने कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ा, तुमने सप्लीमेंट्री भी तुम पढ़कर आए। लेकिन अगर ये तब तक तुम पढ़ रहे थे जब तक तुम्हारा फ्रेंड था क्लास में। बट व्हाट हैपेंड, तुम्हारा फ्रेंड क्या किया? तुम हो तो वो पढ़ रहा है, बट अगर तुम नहीं हो तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन तुम होशियार हो, तुम्हारा फ्रेंड है या नहीं है फिर भी तुम पढ़ रहे हो। तुम थे और तुम्हारा दोस्त था, ठीक है। तुम पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी पढ़ रहा था, तो तुम दोनों मिलके पढ़ रहे थे। मेरे लिए तुम दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, मान लिया यस मैम हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। व्हाट हैपेंड लेटर ऑन? तुम्हारा दोस्त 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा, उसकी तो लॉस हो रही है, बट तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम भी पढ़ाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि व्हाट, तुमने अपना एक्शन उसके प्रेजेंस में दिखाया था। सो यू आर व्हाट, कंप्रोमाइजिंग योर कैरेक्टर, राइट। बट वो घर पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लास आए, वो तुम्हारे साथ है नहीं है, वो अपना पढ़ाई करना है तो करना है। बट तुम्हें फर्क पड़ता है कि वो आए तो ही मैं पढ़ूंगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। इसको फर्क नहीं पड़ता कि बाजू वाला डोमिनेंट है या नहीं है, कैपिटल सी वाला, तो वो अपना कुछ ना कुछ अपना जो एक्सप्रेशन है वो दिखाएगा, वो अपना काम करेगा। उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको बस पढ़ना है, उसको बस नीट क्रैक करना है। तुम्हारा ऐसा नहीं है, बाजू वाला नहीं आया तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो दिस विल बिकम एज व्हाइट। तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे ना, तो ये भी कुछ अल्बिनो जैसा ही बन जाएंगे। एंड दिस विल ऑल्सो टेंड टू अपीयर एज, से मार्किंग किए वो अगाउटी है, जो ब्लैक वाले से वो ब्लैक है, और जो ग्रीन वाले से बेटा जी वो अल्बिनो है। सो इसका क्या है? इसका फिनोटाइपिक रेशो मैं बोलूंगी, आप लोग बोलोगी बेटा जी मैम 9:3:4। और इसका वेरी गुड एग्जाम्पल क्या है? कोट कलर इन द माइस, लैबला प्लांट, and the very good example of it is one more. You know what? Guess and tell me, fatak se tell me what it could be. It is green colors in mice, and that is important because I will show you the movie why these things are happening. कॉम्प्लीमेंट्री में 2 कैरेक्टर मिल रहे थे क्योंकि 2 जीन की आवश्यकता थी। इसमें
दो कैरेक्टर तो मिल रहे हैं एक साथ मिलके, लेकिन तीसरा वाला खुद का भी कैरेक्टर दिखा रहा है। क्यों? उसकी मूवी में आपको ग्रेन का जब कलर आएगा, वो वाले एग्जांपल में ग्रीन कलर ऑफ मेज में, उसमें बताऊंगी। समझ में आया इसका फिनोटिपिक रेशियो? एग्जांपल याद रखना, सॉल्व कर लोगे दिमाग, क्योंकि उसके प्रेजेंस में ये, उसके एब्सेंस में भी ये पढ़ाई कर रहा है, उसके एब्सेंस में भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा, लेकिन ये कैपिटल सी के एब्सेंस में अपना प्रेजेंस नहीं दिखा रहा, अपना कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है। क्लियर? सो समझ में आया? एक और चीज अगर मैं आपको बता दूं, सो लैबला प्लांट में क्या होता है बेटा जी, मैं यहां लिख देती हूँ, which I have told you, लैबला प्लांट, khaki color plant was crossed with buff color। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से था। इंटरमीडिएट जो अपना एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर था वो ब्लैक था, यहाँ पे जो एक्सप्रेस होगा ऑन बिहाफ ऑफ सप्लीमेंट वो होगा चॉकलेट। मेक अ क्रॉस, इसको ऐसा क्रॉस करवाओ, मैंने आपको दे दिए हैं, पेरेंट्स दे दिए मैंने आपको, F1 जनरेशन बनाओ, F2 बनाओ, सेम रेशो दिख जाएगा आपको। जो अगर दोनों साथ में नहीं होंगे, अगर एक ही होगा तो वो अपना कलर दिखाएगा, दैट इज खाकी चॉकलेट कलर। अगर दोनों साथ में होंगे डोमिनेंट तो वो खाकी कलर देगा, अगर ये अकेला होगा तो वो बफ कलर देगा। जो सैंड का कलर होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा जी, मेज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ग्रेन्स कलर इन मेज। सो हेडिंग डालना, कलर ऑफ ग्रेन्स इन मेज। बता दूं, ये भी उसी का एग्जांपल है, सप्लीमेंट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा सा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेट जीन। बताओ इसको, चलो। नाउ ग्रेन्स कलर इन मेज, पर्पल कलर ग्रेन्स गॉट क्रॉस्ड विथ व्हाइट कलर ग्रेन्स ऑफ मेज। ठीक है, तो इसकी F1 जनरेशन ये आई, गैमेट्स बना लिए, F2 जनरेशन मिली, क्रॉसिंग करवा दिया, सेम एज कोड कलर इन माइस का। ठीक है, अगेन जब ये 2 जीन साथ में थे, आपको देख लोगे 2 डोमिनेंट साथ में थे, तो एक कलर दे रहे थे। क्या क्या कलर दे रहे थे बेटा? जो कलर था वो दे रहे थे पर्पल। तो ब्लू वाले हैं ना बेटा जी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लू कलर से, ब्लू वाले हैं ना, ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं ना बेटा जी, वो कौन से कलर दे रहे हैं? पर्पल। और वो कितने हैं? तो आप लोग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड जो ग्रीन वाले हैं बेटा जी, ग्रीन कलर के, वो कौन सा कलर दे रहे थे जानते हो आप लोग? रेड कलर दे रहे थे। और वो कितने हैं? 3। एंड जो ये रेड कलर से मार्किंग है, वो कौन सा कलर दे रहे थे पता है? एज यूजुअल व्हाइट। वो कितने हैं? 4। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो अगेन 9:3:4 हुआ। सेम एग्जाम्पल विथ कोड कलर ऑफ माइस से भी आप लोग देख सकते हो। कैन यू सी, जब ये दोनों जीन साथ में नहीं है तो इस जीन ने अपना एक कलर दिखाया जो कि रेड है, हमें एक नया कलर मिला, क्रॉसिंग करवाया हमने तो हमें वो कलर तो मिला, लेकिन एक साथ में नया कलर भी मिला जो कि रेड कलर है। और ये वाले जीन ने अपना कैरेक्टर दिखाया जब वो अकेले हो। समझ में आया? अकेले वाले, जब वो अकेला प्रेजेंट है तो अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टर दिखाएगा, एंड दैट इज रेड। और अगर वो दूसरा वाला जीन अगर प्रेजेंट है तो वो कोई कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, वो व्हाइट रहेगा उसके साथ में। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप बिहाइंड दिस, आई विल शो यू सून। बता दूं, इतना समझ में आया? वो जेनेटिक मेकअप इतना समझने के लिए, वो ये समझ में आने के बाद वो जेनेटिक मेकअप अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखना बेटा, व्हाट इज द मैकेनिज्म कि हमें ये रेड कलर क्यों मिला, बीच का कलर जो रेड कलर था वो क्यों मिला। इंस्टेड हमने जब व्हाइट कलर फ्लावर से पर्पल कलर ग्रीन कलर, पर्पल ग्रीन व्हाइट ग्रीन कलर से पर्पल ग्रीन को क्रॉस करवाया था, तो जब ये व्हाइट कलर है तो इस पे जीन आर एक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था 2 जीन्स थे, आर एंड पी, मेज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पे जीन एक्ट करेगा, एंजाइम आर बनाएगा, वो जो फ्लावर है वो रेड कलर हो जाएगा। क्लियर? समझना, आर ने अपना एक्शन दिखा दिया। उसके बाद अगर आर नहीं आया, सपोज ये जीन पी है, हाँ, आर पे अगर वापस जीन पी ने एक्ट किया, एंजाइम पी बनाया, तो फिर से वो पर्पल हो जाएगा। सो व्हाइट, आर पे वापस से पी जीन ने एक्ट किया, वो पी जीन ने वापस से कौन सा कलर बना दिया? पर्पल। अब समझ में आया? पर्पल कलर एक्टिवेट के लिए दोनों जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दोनों आर एंड पी मिलके पर्पल बना रहे हैं ना। फिर तो आप लोग कहोगे बेटा जी मैम ये तो सब सेम कॉम्प्लीमेंट्री जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, हमें बड़ा जोल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, यहाँ पे आप देखना, अगर एंजाइम सिर्फ जीन आर प्रेजेंट है
तो वो रेड कलर दे रहा था, लेकिन आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री में देखोगे अगर जीन सी प्रेजेंट था तो वो सिर्फ व्हाइट कलर दे रहा था, वो सिर्फ एक ही कलर दे रहा था, वो अपने एडजेसेंट के बाद नहीं जा रहा था और वो कलरलेस हो जा रहा था। बट यहाँ पे ऐसा है क्या, अगर ये छुप गया, ये पार्ट पूरा छुप गया तो सिर्फ हमें कैसा मिलेगा, रेड कलर। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो आर जीन था वो एक्सप्रेस हो रहा था, बल्कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके बगल वाला कैसा है, लेकिन पी पर्पल तभी बनेगा जब आर प्रेजेंट होगा। समझ में आया? वैसे अगर इसका रेसेसिव ले लोगे तो क्या वो एक्सप्रेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज व्हाट द रीजन इज। व्हाइट पे जीन आर ने एक्ट किया, वो रेड बना एंजाइम बना के, रेड पे वापस पी ने एक्ट किया तब वो पर्पल बना। तो अगर रेड बनने के लिए एक तो होना चाहिए ना, तो सिर्फ आर होगा तो वो रेड होगा, दोनों होंगे तो वो पर्पल होगा। समझ में आया? और कुछ नहीं होगा तो व्हाइट होगा। फिर आप लोग कहोगे इंटरमीडिएट क्यों आए? आप लोग अगर कॉम्प्लीमेंट्री से कंपेयर करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ व्हाइट आ रहा था। याद करो फटाक से, सीपी वाला रेशियो मैंने पढ़ाया था, व्हाइट आया तो सी जीन एक्ट करी थी। पी एक कब एक्ट करेगी? जब सी पे पी ने एक्ट किया, तो वो दोनों साथ में होंगे तब। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर पर्पल नहीं भी आए तो भी रेड कलर मिल जाता है। तो पहला वाला दूसरे के एब्सेंस में भी एक्सप्रेशन दिखाता है ना, दिस इज व्हाट सप्लीमेंट्री। बल्कि दूसरे वाले को पहले वाले की जरूरत होती है। आप पढ़ाई कर रहे थे, उसका आपका फ्रेंड आए या ना आए, पर वो आपके भरोसे पढ़ रहा था, या वो पढ़ाई कर रहा था, आप आओ या ना आओ। समझ में आया? दिस इज व्हाट सप्लीमेंट्री जीन इज। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट आवर सप्लीमेंट्री जीन। ये मैंने आपको जेनेटिक में, ये आपको अच्छे अच्छे बुक में भी नहीं मिलेगा बेटा जी। क्लियर करके ले लो ये कॉन्सेप्ट। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। So that's all about our supplementary genes. Now give the very first heading. Next heading has duplicate gene. एक छोटा सा जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख लेते हैं. What is this concept of duplicate gene? And make a note and write down. Duplicate genes are also called as pseudo alleles. क्या बोलते हैं उसको? Pseudo alleles. Let's see the beautiful concept of duplicate gene. First of all, duplicate genes are defined as factors that are two or more genes present on different chromosomes. आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ये हमेशा different chromosomes पे present होते हैं. Point to be noted, which determine the same or nearly same phenotype that either of them can have same character. ऐसा जीन मैं आपको बताऊं, अगर R is responsible, चलो not R, take it T. T is responsible for tallness. Then X gene is also responsible for tallness. Is responsible for tallness, and L gene which is also responsible for tallness. So L ने T की कॉपी करी ना, डुप्लीकेट किया ना, कॉपी करा ना, उसी को उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? They are called as duplicate gene. They are called as what? Duplicate gene या फिर tallness. And the independent gene do not have cumulative effect. इसका मतलब ये नहीं है कि T plus L मिलके कुछ दे रहे हैं. There is nothing called like that. That is in different condition. And I have taught you that. That is in polygenic inheritance. जिनको पिछला रिपीटर वालों को पहले पढ़ाया था, वो लोग याद कर सकते हैं कि वो किसमें है बच्चा. क्लास में हुआ था ये चीज, वो polygenic inheritance में. लेकिन डुप्लीकेट जीन कभी भी T plus L वाली कंडीशन नहीं देती. They never ever do like that. Clear? They don't show additive effect. They show ये इसका कॉपी करिए, दूसरे की कॉपी करके ही इफेक्ट दिखाते हैं. And they produce the same phenotype whether present in homozygous or heterozygous. ये होमोजाइगस कंडीशन में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये टॉलनेस ही दिखाएगा, ये टी को ही कॉपी करेगा, उसी को बच्चा हम लोग डुप्लीकेट जीन कहते हैं, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेटेरोजाइगस हो. सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका शेपर्ड पर्स का एग्जांपल है कैप्सुला बुर्सा पार्टोरिस. बेटा ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको कैप्सुला पढ़ाया था टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में. जाओ जाकर के वीडियो देखो, चैनल पे होगा. सो कैप्सुला बुर्सा पार्टोरिस आई हैव टॉट यू, दिस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म. जिसको नोटिस करके, अच्छा ये पार्टोरिस लग के क्या लग रहा है आप लोगों को? पैरोट है ये? बिल्कुल ना बेटा जी, ये एक फ्लावर है. इसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है ये. तो उसमें हमने देखा उसके जो सीड कैप्सूल्स है वो कुछ टू टाइप्स के हैं, ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड. तो लेट्स मेक अ क्रॉस एंड सी व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ डुप्लीकेट जीन. करवा लें? यस करवा लेते हैं. रिपीट्स, मैंने आपको कहा था अगर एक जीन है तो वो दूसरे जीन की एग्जैक्ट कॉपी करेगा. तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रायंगुलर. यहाँ पे भी ट्रायंगुलर, क्योंकि ये डोमिनेंट फॉर्म में तो ट्रायंगुलर ही होगा. ये देखो बेटा TTLL, ये भी ट्रायंगुलर.
ये भी ट्रायंगुलर, ये दो है तो डोमिनेंट करेंगे, ये भी ट्रायंगुलर। अभी ये सवाल आता है मैम ये क्या होगा, इलोंगेटेड? बिल्कुल ना बेटा जी, एक जीन तो है ना डोमिनेंट, हाँ, तो ये दूसरे वाले जीन की क्या करता है बेटा, डुप्लीकेसी, तो ये भी क्या होगा, ट्रायंगुलर। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर, क्योंकि अगर एक भी जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो पहले वाले की कॉपी कर लेता है। समझ में आया? वो पहले वाले को रिप्लेस, वो पहले वाला जैसा एक्ट कर लेता है, एडिटिव इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, वो दूसरे वाले की कॉपी कर रहा है। तो ये वाली जीन, अगर ये टी डोमिनेंट होता तो ये टॉल होता, पर टी नहीं है ना, तो ये खुद ही डोमिनेंट, ये खुद ही ट्रायंगुलर हो जाएगा। ये भी अगेन, ये भी हिस्ट्री रिपीट्स एज यूजुअल। तो ये सारे बेटा जी कैसे निकल गए, ट्रायंगुलर, बट एक्सेप्ट ब्लैक वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं था, कोई भी जीन, एल जीन ऐसा नहीं था जो टी जीन को कॉपी कर सके। ये तो रेसेसिव है ना, और यही तो है हमने पेरेंट में लिया था TTLL। सो द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक रेशियो बिकम 15:1, वेयर 15 इज ट्रायंगुलर, so the ratio becomes 15:1। समझ में आया बेटा? दिस वॉज द वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि एक जीन दूसरे, एक एलील दूसरे जीन, एक जीन दूसरे जीन की कॉपी कर लेता है। जो कैरेक्टर ये दिखाएगा वही कैरेक्टर ये दिखाएगा, या ये इसकी कॉपी ये कर लेगा। सो दिस टाइप ऑफ कॉपी कैट जीन को कॉपी कैट जीन बोल दें। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेट जीन, एंड वेरी वेल एग्जाम्पल इज कैप्सुला बुर्सा पार्टोरिस। क्लियर? एक स्टार करके एक पॉइंट लिखना, लिखना बेटा, सच डुप्लीकेट जीन्स आर कॉल्ड एज, बोलते हैं उनको सूडो एलील्स। समझ में आया? डुप्लीकेट जीन, उनका फिनोटिपिक रेशियो 15:1। जीनोटिपिक रेशियो बेटा हमेशा सेम ही रहता है, जीनोटिपिक रेशियो कभी भी वेरी नहीं करता। क्लियर? That's all for today. Thank you very much. Do watch the session, complete it, write notes. Any doubt, please comment, like it, and subscribe the channel and share the channel also. Okay? Thank you very much. Any doubt, contact NR ma'am, A Square Classes. Thank you. Have a good day. Thank you. Chalo.